اللہ تعالی ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، حفیظ ہے، قدیر ہے، ہماری حفاظت بھی کرتا ہے اور ہر چیز پہ قدرت بھی رکھتا ہے، اور کوئی کام اس کے فیصلے کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہر چیز پہ اس کا اختیار ہے، ہر چیز اس کے سامنے بے اختیار ہے، بے حیثیت ہے۔ ایک ایک چیز دنیا کی اس کے فیصلے سے چلتی ہے۔ ریت کا ذرہ بھی اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، درخت کا پتا اپنی جگہ سے ٹوٹتا ہے، ہوا کا جھونکا چلتا ہے، بارش کا قطرہ برستا ہے، انسان کی آنکھ جھپکتی ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے، اس کی زبان ہلتی ہے، تو ہر حرکت پہ اللہ کی اجازت کی پابند ہے۔ جب تک اس کا امر ہے یہ سب کچھ چلتا ہے۔ میرا بازو ایسے، جب امر ہے تو ایسے، جب اس کا حکم ختم ہو جائے گا یہ ایسے ہو جائے گا۔ میں کھڑا ہوں اس کے حکم سے، جس دن اس کا حکم میرے اندر سے نکل جائے گا۔ اور جب بندے مرتے ہیں تو کھڑے رہتے ہیں کہ گر جاتے ہیں؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آ کے آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، یہ انسان کے اندر روح کیا ہے؟ ان سے کہہ دو قل الروح من امر ربی، یہ روح تو میرے رب کا حکم ہے۔ اتنا علم ہے مجھے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو علم مجھے دیا گیا وہ تھوڑا سا ہے۔ علم بھی اللہ کے پاس ہے، اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، حکم بھی اسی کا ہے۔ کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر نہیں ہے، کوئی چیز اس کے امر کے بغیر نہیں ہے، اور اس کو جب کچھ کرنا پڑتا ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے، کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، تو بس کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے، اسے کرنا کچھ نہیں پڑتا، اسے محنت نہیں کرنی پڑتی، مشقت نہیں کرنی پڑتی، ہاتھ نہیں ہلانے پڑتے۔ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لے تو بس یہی بات ہے، کن ہو جا، فیکون ہو جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ کرنا ہے، ہمیں اپنے رب پہ توکل کرنا ہے، اور یہ ہمارا ایمان یقین ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا ہمارا اللہ ہے۔ سب چھوٹے ہیں، سب چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا ہے۔ کسی کو بڑا نہیں کہنا، کسی کو طاقتور نہیں کہنا، کسی کو یہ نہیں کہنا کہ اس کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ ایک میرا رب ہے جس کو شکست نہیں دی جا سکتی، باقی سارے مخلوق ہیں۔ مخلوق کو کبھی خالق کا درجہ نہیں دینا۔ ان کو کون شکست دے سکتا ہے جی؟ فیصلہ تو امریکہ کرتا ہے، ہندوستان کو کس طرح ہرایا جا سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، میرے رب کے پاس سب کچھ ہے، یہ سارے محتاج ہیں، میرا رب کسی کا محتاج نہیں، وہ تو ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ یہ پیدا ہوئے ہیں، اس نے پیدا کیا ہے، یہ بندے ہیں، وہ رب ہے، یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، کبھی ان کو ملانا نہیں ہے۔ بڑا مسئلہ تھا جو آج کے حالات میں یہ ہندوستان کو کیا پڈی کا شوربہ، ہمیں وہ وقت یاد ہے 9/11 کے بعد، مجھے امریکہ کو کون شکست دے گا؟ افغانستان نے واپس جانا، وہ تو اڑتی چڑیا کے پر گنتے ہیں، وہ چلتی گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں پڑھتے ہیں، وہ گھر میں روٹی پکتی، اس کو پتا کیا پکایا، تمہاری جیب میں کتنے پیسے ان کو پتا ہے، ہر ٹیلی فون سنتے ہیں، وہ سپر پاور ہیں، وہ سب سے بڑی قوت ہے۔
خلاؤں میں ان کے قبضے، فضاؤں میں ان کے قبضے، سمندروں میں ان کے قبضے. لوگ ہمیں سمجھاتے تھے ان کو شکست نہیں دی جا سکتی، وہ بہت بڑے ہیں. ہم اس وقت بھی کہتے تھے وہ بڑے نہیں ہیں. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بڑا ہے. خلا میں وہ ہے، فضا میں وہ ہے، سمندر میں وہ ہے، مگر خلاؤں، فضاؤں، سمندروں کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اس خلا سے اوپر ہے، اس فضا سے اوپر ہے، اس سمندر سے نیچے جو کچھ ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے. تو مسلمانوں، کوئی بھی جملہ ادا کرنے سے پہلے، کوئی بھی تبصرہ تجزیہ حالات سے کرنے سے پہلے ایسا نہیں کرنا کہ ہماری توحید میں فرق آ جائے، ہمارے ایمان میں فرق آ جائے. ہم بات کشمیر کی کریں، بات ہندوستان کی کریں، بات کافروں کی کریں، اور سودا اپنے ایمان کا کر جائیں، اور جی کچھ نہیں ہونا. اب مسلمانوں نے ایسے ہی مرنا ہے. ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ ان کا کون ہے؟ اور مسلمانوں، آپ کا کوئی نہیں ہے، آپ لاوارث ہیں. جن کا رب ہو ان کا کون نہیں ہے؟ وہ کہیں ہمارا کوئی نہیں ہے، اور جن کا رب ہو. اصل میں مسئلہ حالات کا نہیں ہے، مسئلہ ایمان کا ہے. حالات نہیں خراب، خراب کیا ہوا ہے؟ توکل خراب ہوا، ایمان خراب ہو گیا. وہ جتنی فوج ہے ہم کیا کریں گے؟ یہ جتنی بھی فوج ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، غالب کس نے ہونا؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، بے شک اللہ کے لشکر، هُمُ الْغَالِبُونَ، وہی غالب آئیں گے. میری آپ سے دردمندانہ اپیل ہے، درخواست ہے، منت ہے، جب اخبار بہت پڑھا کریں، جب خبریں بہت پڑھا کریں، جب ٹی وی کو بہت سنا کریں، دیکھا کریں، کچھ وقت کے لیے قرآن پڑھ لیا کریں. وہ سارے آپ کو مایوس کریں گے، اور یہ کتاب امید دے گی. وہ سارے آپ کو اندھیروں میں پھینکیں گے، دلدلوں میں پھینکیں گے. وہ سارے آپ کو یہ کہیں گے کچھ نہیں ہوگا، یہ کہے گا سب کچھ ہوگا. آج مسلمان مایوس کیوں ہیں؟ آج کافر کہہ رہے ہیں ہم مسلمانوں کے خلاف 5th جنریشن وارفیئر لے کے آئے، ہائیبریڈ وار لے کے آئے ہیں. اور وہ جنگوں کی وہ میدانوں کی جنگ نہیں ہے، وہ اسلحوں کی جنگ نہیں ہے، وہ میزائلوں کی جنگ نہیں ہے، وہ ذہنوں کی جنگ ہے. کسی قوم کو ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ مفلوج کر دو، وہ یہ کہہ دے نہیں ہم نکمے، ہمارے پاس کچھ نہیں، اور یہ سیدھے مرے پائے. اسے آج کافر کہتے ہیں 5th جنریشن وار. ذہنی طور پہ غلام ہو جاؤ، اور جی کی بننا کشمیر کا، کی بننا ہندوستان کا، اپنی روٹی کھاؤ، اپنی دکان چلاؤ، اپنے کام کرو، اپنے گھر بار کو دیکھو. ختم ہو گیا جی، جماعتیں بھی ختم ہو گئی، جہاد بھی ختم ہو گیا، اسلام بھی ختم ہو گیا، ہمیں تو پاکستان کا نہیں پتا اس سے بھی رہنا کہ نہیں رہنا. یہ وہ جنگ ہے جو وہ آج ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں. آپ اپنے دل سے پوچھیں اس جنگ میں میں جیت رہا ہوں کہ وہ جیت رہے ہیں؟ بہت سارے اللہ کے بندے ہوں گے جو کہیں گے ہم جیت رہے ہیں. یار میں تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعا کرتا ہوں، میرا اپنے رب پہ ایمان ہے، وہ کبھی مسلمانوں کو ضائع نہیں کرتا. شہادتیں ضائع ہو جائیں گی، اتنے شہید ہوئے، ہمیں کیا ملا؟ مگر ایمان والے کہتے ہیں ہمیں شہادت مل گئی، اس سے بڑا کیا چاہیے؟ اور اللہ تعالیٰ کبھی خون کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سب نے ذی الحجہ میں پڑھی، قربانیاں کی، عید کی، اور سب نے ایک تقریر کی کہ اللہ تعالیٰ قربانیوں کو ضائع. پھر کیوں کہتے قربانیاں ضائع ہو جائیں گی؟ قرآن پڑھتے تو کہتے قربانی ضائع نہیں ہوگی، اور اخبار پڑھتے تو کہتے قربانیاں ضائع ہوگی. فرق کی فائدہ ہوا؟ اتنے شہید ہوئے، اتنے پیسے دیے، اتنی محنتیں کی، کشمیر کیا، سب ضائع ہو گیا. اللہ رحم کرے، کہیں منہ سے کہتے ہیں ضائع ہو گیا، اللہ تعالیٰ واقعی ضائع نہ کرتے. نہ دنیا میں ملے نہ آخرت میں ملے، سب ضائع ہو گئے.
جو کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نتیجے دے گا، آخرت میں اجر دے گا، جنتیں دے گا، اللہ کے وعدے سچے۔ وہ کہتے تھے نا منافقین، یہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سب دھوکے ہیں، یہ دھوکے ہیں، مگر مسلمان کہتے تھے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ لوگ ان کو ڈراتے تھے خندق کے دن، اور ڈر جاؤ اب نہیں تم چلو گے، یہ 10,000 ہے۔ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لوگ آ گئے، جمع ہو گئے ان کے گرد، اور کہنے لگے ڈر جاؤ بس کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا لوگ ان کو ڈرا رہے تھے، لوگ ان کو چپ کرا رہے تھے، لوگ کہتے تھے بس کرو، اور وہ کہتے تھے فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ رہا تھا۔ جن کا ایمان بڑھ رہا ہے ان کا رستہ ٹھیک ہے، اور جن کی مایوسی بڑھ رہی ان کا رستہ خراب ہو چکا ہے۔ حالات مشکل آئے اور ایمان بڑھے، ہم ٹھیک ہیں۔ حالات مشکل آئے دعائیں بڑھے، ہم ٹھیک ہیں۔ حالات مشکل آئے سجدے بڑھ جائیں، ہم ٹھیک ہیں۔ حالات مشکل ہو قرآن کے ساتھ تعلق جڑ جائے، اللہ کے ساتھ توکل بڑھ جائے، ہم ٹھیک ہیں۔ اور کیا کہہ رہے تھے دشمنوں کو دیکھ کے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، او کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی، نعم الوکیل، بڑا شاندار دوست ہے، بڑا عالی شان، بڑا ہی زبردست محافظ ہے، پرواہ نہیں۔ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، دفاع کی کوئی چیز نہیں ہے، مگر کہہ رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مسلمانوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اگر رویہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ہے، مبارک ہو آپ کو، اور اگر رویہ یہ ہے پتہ نہیں کیا ہونا ہے، پتہ نہیں کیا ہونا ہے، کیوں نہیں پتہ کیا ہونا ہے؟ فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، جو اللہ کے لیے قتال کرتے ہیں یہ اپنی دنیا کو بیچ دیتے ہیں آخرت کے لیے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اور جو مارکے میں اترتے ہیں، جو میدان میں آتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں یا غالب آ جائیں، ان دونوں کو اجر عظیم ہے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، شہادتیں بھی ان کا انعام، فتح بھی ان کا انعام۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تربیت کر رہا ہے، کیا شہادتیں بھی تمہارا انعام ہے؟ تو میں پہلی بات جو اپنے پہلے حصے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، حالات کی وجہ سے ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ جو بھی آپ کو سمجھائے، جو بھی آپ کو پڑھائے، جو بھی اس کو آپ کو مایوس کرے، مجھے مایوس کرے، میں اس سے اپنی بات نہیں کروں گا، میں اس سے اپنے رب کی بات کروں گا۔ مجھے ایک مجاہد ملا افغانستان کا، کہنے لگا مجھے کسی نے کہا امریکہ کے پاس بڑی طاقت ہے، اس کے جہاز اتنے اونچے ہیں، اس کے میزائل اتنے بڑے ہیں، اس کی ٹیکنالوجی اتنی زیادہ جدید ہے، اور تم ان کے جہازوں کو دیکھ نہیں سکتے، اتنے بلندی پہ آتے ہیں، وہ بہت کچھ ہے ان کے پاس۔ وہ کہتا سادہ سا مجاہد کہنے لگا یہ جہاز جتنے بھی بلند ہیں میرا رب ان سے بلند ہے، ان کے پاس جو کچھ بھی ہے میرے رب کے خزانوں کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں ہے۔ یہ جتنے بڑے بھی لشکر ہیں میرے رب کے لشکروں کے مقابلے میں وہ ابابیلوں سے ہاتھی برواتا ہے، وہ مچھروں سے بادشاہ کرواتا ہے، وہ پانیوں میں فرعونوں کو ڈبو دیتا ہے، وہ ہواؤں سے قوم عاد سمود کو تباہ کر دیتا ہے، وہ ایک چیخ کے ساتھ قوم سمود کو تباہ کرے، ایک ہوا کے ساتھ قوم عاد کو تباہ کرے، وہ ایک سیلاب کے ساتھ قوم نوح کو تباہ کر دے، اس کو پوچھنے والا کون ہے؟ اس نے انسانوں سے کام نہیں لیے، جب اس کی مرضی آ گئی اس نے ابابیلوں کو حکم دے دیا، اس نے مچھر کو حکم دے دیا، اس نے ہوا کو حکم دے دیا، اس نے پانی کو حکم دے دیا، اس نے جلتی آگ میں سے اپنا خلیل نکالا، اس نے چھری کے نیچے سے اپنا اسماعیل نکالا، وہ قادر ہے۔
उसने मक्के के घेरों में से हिजरत की रात में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला। गारे सौर में सैयदना अबू बकर कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर मुशरिकीन अपने पैरों की तरफ देख लेते तो हमें पा लेते, सिर्फ ऐसे नीचे देखते ना, सामने हम बैठे थे। मगर कहते मैं डरा कि अब इन्होंने पकड़ लिया, मगर मेरे नबी ने वो कहा जो कुरान में बयान हुआ, इदहुमा फिल गार इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। गार में उसने अपने दोस्त से क्या कहा? इद यक़ूलु लिसाहिबिही, अपने सहाबी से, अपने दोस्त से, साथी से क्या कहा? ला तहज़न, डरना, इन्नल्लाह मआना, हमारे साथ अल्लाह है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को देख के जब कौम घबरा गई तो क्या कहा? डरना डरना, इन्ना माया रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है, सयाहदीन, हमें रास्ता देगा। और क्यों देख के फिरौन को डर गए हो कि ये आ गया? परेशान ना हो, मेरा रब मेरे साथ है, सयाहदीन, जरूर रास्ता देगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जलती आग देख के कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरा अल्लाह काफी। दो जगह कहा, एक खंदक वालों ने कहा, एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा। मुसलमानों, अगर रवैया ये होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा इंशाअल्लाह, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बात अल्लाह पे की जाएगी, यकीन अल्लाह पे किया जाएगा, अपने सारे मामला किसकी तरफ पलटाए जाएंगे? अल्लाह की तरफ। हमने जो कुछ किया अल्लाह के लिए किया, अल्लाह के हुक्म पे किया, और आइंदा भी जो कुछ करेंगे अपने रब की रजा के लिए करेंगे, अपने रब की मदद के साथ करेंगे। और जिसकी मदद अल्लाह ताला करे उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और अगर अल्लाह ताला तुम्हें छोड़ दे उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे? वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों को चाहिए किस पे तवक्कल करें? ये अल्लाह का कुरान है, ये आले इमरान है। ओहद के जख्मों के बाद, ओहद की शहादतों के बाद, नबी के चेहरे के जख्मों के बाद अल्लाह ताला कह रहा परेशान ना हो, ये जो कुछ हुआ ये अल्लाह के फैसले से हुआ है। जो खून तुम्हारा बहा है, जो तुम्हारे शहीद हुए, ये अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हो गए। किसी काफिर की जुर्रत नहीं है वो किसी की जान ले ले। जान लेने का फैसला कौन करता है? अल्लाह। मुसलमानों, अगर तवक्कल अल्लाह पे रहेगा तो बड़ी तकलीफ होती है। जब भी हुकूमत बनती किसी मुल्क की, सारे लाइन में लगे होते हैं, जिसे चाहेगा अमेरिका हुकूमत बनाएगा। कश्मीर का फैसला किसने करना? बताएं किसने करना? क्यों क्या करना? बात क्या कहते हैं? अमेरिका ने अब जिम्मे ले लिया है, अब फैसला कौन करेगा? अमेरिका फैसला करेगा। मुसलमानों, मैं कहता हूं पता नहीं कश्मीर मिलता कि किस तरह मिलता है, ईमान ना खराब कर लेना। जी अब अमेरिका ने हामी भर ली, जो वो कह देता वो हो जाता है। ये सिफ्त किसकी है? जो वो कहेगा वही होगा। ये सिफ्त किसकी है? ये अल्लाह ताला की सिफ्त है। उन्होंने हामी भर ली है, अब हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, जो अल्लाह चाहेगा वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, होता वो है जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह के सामने रोएंगे, अल्लाह का तर्जुमा करेंगे, अल्लाह की मिन्नत करेंगे, अल्लाह को वास्ते देंगे, होने वाला जुल्म अपने रब को बताएंगे और मेहनत करेंगे। खाली दुआएं नहीं, पहले बदर में निकले थे फिर दुआ की थी। हमारे कई बंदे, और जी दुआ ठीक है, दुआ में हिस्सा डालें, मगर दुआ करने से पहले मैदान में आए थे, फिर रात को कहा था ऐ अल्लाह अगर आज ये मिट गए फिर तेरी इबादत कौन करेगा? इतना रोए थे, चादर कंधों से गिर गई थी। सैयदना अबू बकर कह रहे थे रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी बस कर दें, बस कर दें। रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। अल्लाह ताला फरमा रहे थे 1000 फरिश्ते
3000 फरिश्ते। अल्लाह कहा नहीं, अल्लाह ताला तू तो ये बता कि तेरा क्या। फिर अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे साथ, अन्नी माकुम, और जाओ मार कर लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। फसब्बितुल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को साबित कदमी दे दी। सउल्की फी कुलूबिल्लज़ीना कफरू रुब, और किनके दिलों में रोब डाल दिया? काफिरों। फिर मार्का खत्म हुआ तवक्कल वालों का, सजदे वालों का, दुआओं वालों का, नहत्तों का। और जिनके पास 2 घोड़े थे, अबू जहल के पास 100 घोड़े थे, जिनके पास 18 तलवारें थी, 18 ये लोग तलवारें थी, 295 के पास तलवार नहीं थी। नंगे पैर आए थे, पैदल आए थे। और अबू जहल रोज ऊंट कितने खाता था? इनके पास बैठने को ऊंट नहीं था। वो कभी 9 ऊंट खाता और कभी 10, एक दिन में 10 ऊंट खा जाते थे। इनके पास बैठने को ऊंट नहीं था। ये ईमान वाले थे, वो सामान वाले थे। ईमान वाले मैदान में आए, सामान वाले सामान लेके आए, ईमान वाले ईमान लेके आए। फिर जो मार का, वो एक लंबी बात है, मैं तो उसका आखिर बयान करता हूं। जब तवक्कल वाले मैदान में खड़े हुए तो आसमान से आवाज आई, फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ये कत्ल तुमने नहीं किए, ये अल्लाह ने किए हैं। ये तीर तुमने नहीं फेंके, ये अल्लाह ने फेंके। लड़े बंदे थे, मगर लड़ाई का फैसला किसने अपने ऊपर लिया? जिन्होंने रब पे तवक्कल किया। फिर अल्लाह ताला कहता है ये मार्का तुम्हारा नहीं था, तुमने मेरे सुपुर्द किया था, ये मेरा मार्का है। फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं थी, ये अल्लाह ने लड़ाई लड़ी। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ये तीर तुमने नहीं फेंके, ये अल्लाह ने फेंके। ओ मुसलमानों, 9 लाख फौज है कश्मीर में, 69 लोग हैं पत्थरों वाले। जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। इसलिए नहीं जीत रहे कि इंसान इंसान के सामने है। एक तरफ भगवान के बंदे मानने वाले हैं, एक तरफ रहमान के मानने वाले हैं। एक के पास दुनिया का असबाब वसाइल है, एक के पास सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और सड़कों पे निकलते तो क्या बोलते हैं? आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। उनके पास ये है, 9 लाख फौज जित है। आज 25 दिन हो गए, 25 दिन नहीं। और 25 दिन कितने कश्मीरी मेरे जुमे में बैठे हुए। गुजरांवाला आधा किनका है? गुजरांवाला की आधी आबादी कश्मीरियों की है, जो 1886 में गुजरांवाला में, सियालकोट में, लाहौर में, रावलपिंडी में हिजरत करके आ गए थे। जुल्म इस कदर ज्यादा था, कश्मीर में रह नहीं सकते थे। 1886 और आज 2019, 150 साल पहले भी जुल्म था। 150 साल के जुल्म में ये तहरीक उनके हाथ से गई नहीं। 1886 पाकिस्तान में मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने आजादी की जंग कब शुरू की? 1857 में। और कश्मीरियों ने 1846 में। और ये एक जो क्या नाम इसको बोलते हैं, 370 में हम फंसे हुए थे। 135 में ऐसे कोई मायूस मुसलमान है, एक कागज के टुकड़े पे सारे कश्मीर। और जी कश्मीर क्या? कश्मीर के रिश्ते ईमान के हैं, कश्मीर के फैसले अल्लाह के पास हैं। कश्मीरियों ने अल्लाह से मदद मांगी है, वो अल्लाह के नाम पे खड़े हैं। वो हिंदुस्तान के कागज के पाबंद हैं। 1846 रंजीत, गुलाब सिंह, पता नहीं इसका क्या पोता था, रणबीर सिंह, ये सारी एक पूरी नस्ल है सिखों की, जिन्होंने कश्मीरियों के, जिंदा लोगों की खाल उतारी, उनके अज़ा काटे। अंग्रेजों ने डोगरों को बेचा, कश्मीरियों को नहीं बिके। कितने में बेचे?
75 लाख नानक शाही में 7 लाख कश्मीरी बेच दिए, 10-10 रुपए का इंसान बेच दिया, 10 रुपए का इंसान बिका कश्मीरी, और कहा कि 1 साल का तुम इसका मुआवजा भी दिया करोगे। पूरे कश्मीर की कीमत क्या तय हुई? साल का 1 घोड़ा, 12 बकरियां, 6 कश्मीरी चादरें। साल का जो मुआवजा मिलेगा वो 1 घोड़ा, 12 बकरियां, 6 कश्मीरी चादरें, ये कश्मीर की कीमत होगी पूरे साल की। 75 लाख नानक शाही नकद दे दो, 10-10 रुपए में इंसान खरीदो। ये कश्मीर कोई 2019 है? ये कोई मोदी के मसले हैं? ये कोई आज के हिंदुस्तान बीजेपी, बजरंग दल, राष्ट्रीय सेवक संघ, आरएसएस के मसले? ये तो सदियों की तारीख है। बर्रे सगीर में मुसलमान बाद में आए और कश्मीर में मुसलमान पहले थे। कभी नहीं माने, ना सिखों को माना, ना मराठों को माना, ना डोगरों को माना, ना अंग्रेजों को माना। कश्मीर ने कभी किसी की गुलामी कबूल नहीं की। बिक गए, बज़ाहिर बिके थे, कश्मीरियों ने सौदे नहीं किए। 1846 में कहा हम आजादी लेंगे, आपने 1857 में कहा, उन्होंने 1846 में कहा। जिंदा इंसान जलाए गए और किसी को शायद तारीख आती नहीं हमें। असल में अखबार पढ़ने वाले, टीवी पढ़ने वाले ज्यादा है, किताबें पढ़ने वाले कम है। ना तारीख का पता, ना इस्लाम का पता, ना कुरान का पता, ना हदीस का पता, ला 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 कर देंगे, वो गया जी गया। इतना कच्चा काम नहीं है। अपने हौसले बुलंद रखें, अपने अज़्म बुलंद रखें, हम अपने ईमान की फिक्र करें और इस बात की फिक्र करें कि हमारा किरदार क्या है, हम कहां खड़े। 1931 में अजीब मंजर था, जेल के बाहर कश्मीरी खड़े, जोहर की अजान का वक्त हो गया, अंदर मजिस्ट्रेट की अदालत है, अल्लाह अकबर, जोहर की अजान शुरू की। मजिस्ट्रेट ने कहा ये बाहर क्या, बंद करो। हजारों मुसलमान बाहर हैं, अजान देने वाला अजान दे रहा है। उसने कहा बंद करो, उसने कहा ये अजान है, उसने गोली मारी, अजान देने वाला शहीद हुआ। अगला बंदा खड़ा हुआ, जहां अजान रुकी थी वहां से 22 लोग शहीद हो गए, अजान पूरी की है। ये कौम है, ये अल्लाह अकबर के लिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए कटने वाले लोग हैं। 22 लोग शहीद हुए, और अगर आज के मुसलमान होते एक पटाखा चल जाए, भागना के रुकना, कोई हिला नहीं है, अजान पूरी की है, अजान पूरी की है। कायदे आजम जाते थे कश्मीर में, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी थी। मुझे आप ना, मैं आप बहुत जल्दी फिक्रमंद, परेशान, पता नहीं की हो जाना, कुछ नहीं होना। कश्मीर अल्लाह की तौफीक से मुसलमानों का है, कश्मीर पाकिस्तान का है, इससे सिवाय इसका कोई हल नहीं। पाकिस्तान बना 14 अगस्त को 1947 इस महीने में, और कश्मीरियों ने कब इल्हाक किया? 19 जुलाई। आपसे 25 दिन पहले उन्होंने कहा कश्मीर पाकिस्तान है। 25 दिन पहले ऐलान हो चुका था कि 19 जुलाई 1947 कश्मीर पाकिस्तान है। आज हमारे बच्चों को यह तारीख पढ़ाने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान से 25 दिन पहले उन्होंने ऐलान किया था हम पाकिस्तानी हैं। वो तो अंग्रेज, नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, ये सारे बदबख्त मिल गए और कश्मीरियों को जेल में डाल दिया। आज फारूक अब्दुल्ला कहता मेरा बाप गलत था। अल्लाह का शुक्र करें, हालात मुश्किल होते हैं, हर शर में से खैर निकलती। जो हिंदुस्तान के नारे लगाते थे आज वो किसके साथ है? अब्दुल्ला का बेटा आज क्या कह रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला, मेरे बाप की गलती थी हिंदुस्तान के साथ रहना, हमें क्या फैसला करना चाहिए था? पाकिस्तान। हिंदुस्तान के नौकर, मुसलमानों के गद्दार और महबूबा मुफ्ती, वो अपने बाप के बारे में कहती नहीं, गलत था।
آج फारूक अब्दुल्ला कहता हम गलत थे, जो गद्दार थे वो भी तौबा के लिए तैयार हैं। आप कहते क्या हो रहा है? और आज हिंदुस्तान के तो पाकिस्तानी तो जो हैं गिरफ्तार हैं ही हैं, शब्बीर शाह, यासीन मलिक, अली गिलानी, आसिया इंद्राफी अप्पाजी, मुशर्रफ आलम, ये गिरफ्तार हैं। और जो हिंदुस्तान के नौकर थे वो भी आज कहें, वो भी जेल में। फैसला होने जा रहा है। आज 25 दिन के कर्फ्यू में हिंदुस्तान को एक कश्मीरी नहीं मिला जो कह दे कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं। आज सारी दुनिया का मीडिया दिखा रहा पाकिस्तान पाकिस्तान, पत्थर खा रहे हैं। और 25 दिन हो गए गुजरांवाला के लोगों, 25 घंटे रोटी ना पके घर में, एक दिन दूध ना आए, एक दिन चाय ना मिले, बच्चों का खाना खत्म हो जाए घर में, घी दाल चावल आटा सब्जी घर में खत्म हो जाए। कितने घर चला सकते हैं मैं और आप? 25 दिन से दुकान नहीं खुली, 25 दिन से कोई नौकरी पे नहीं जा सका, 25 दिन पे मजदूर मजदूरी पे नहीं आ सकता। और सेबों का सीजन है, दुनिया का महंगा तरीन और कीमती तरीन सेब का है, जाया हो रहा है, दरख्तों पे गल रहा है, तोड़ नहीं सकते। हिंदुस्तानी फौज आज चावल के लगाने के दिन है, चावल के संभालने, छोटी छोटी उनकी खेतियां हैं चावलों की, बर्बाद हो रहा है सब कुछ। स्कूल बंद है, अस्पताल बंद है, मरीज के लिए दवाई नहीं है, 12,000 लोग पैलेट के जख्मी हैं, इलाज नहीं है। और मगर कितने कश्मीरी जिन्होंने कहा हमारी बस हो गई, हम माफी मांगते हैं हिंदुस्तान से, मोदी जी आप जो फैसला करेंगे हम आपके साथ हैं। 9 लाख फौज है, 9 लाख फौज है, हर दरवाजे के बाहर फौजी खड़ा है, हर चौक पे फौजी खड़ा है। अस्पताल में मरीज नहीं रह रहे, फौज रह रही है। स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में बच्चे नहीं पढ़ रहे, फौज के कैंप बने हैं। और कश्मीर कश्मीर नहीं है, कश्मीर जेल है। जो इसराइल फलस्तीन में कर रहा है वो सारी कॉपी आज यहां पे की जा रही है। हर तरफ से कश्मीर को घेर दिया गया, मगर आफरीन है उन 1 करोड़ मुसलमानों के ऊपर जो 9 लाख फौजियों के सामने जब खड़े होते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान के परचम लेके आते हैं और फिर गोली आती है और फिर सीने पे वो पाकिस्तान का परचम होता है, वो पाकिस्तान का परचम खून में रंगीन होता है। फिर उसी परचम को कफन बना के उसको दफन करते हैं, उसकी कब्र पे भी पाकिस्तान का परचम लहराते हैं। और जो लोग खुद ये फैसला कर गए, आप उनके बारे में सोचते कि वो पीछे हट जाएंगे। कश्मीर उन्हीं का है जिसको कश्मीरी कहेंगे। हाँ, एक बात हो सकती है, बहुत सख्त बात है, अली गिलानी ने शुरू में कह दिया था जिस दिन ये शुरू हुआ कि जेनोसाइड की तरफ, नस्ल कुशी की तरफ जा रहे हैं, आरएसएस को खंजर बांटे जा रहे हैं, फौज को गोली मारने के इख्तियारात दिए जा रहे हैं, हिंदुओं को आबाद करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, मुसलमानों की नस्ल कुशी कर दो। और क्या कहा सैयद अली गिलानी ने? मुसलमानों याद रखना, हम तुम्हें इमरजेंसी की कॉल दे रहे हैं, अगर हमारी नस्ल खत्म हो गई, इन्होंने हम सबको कत्ल कर दिया, क़यामत के दिन हम तुमसे सवाल करेंगे। आजाद मुल्क की आजाद फिजाओं में सांस लेने वालों, क़यामत के दिन हम तुमसे सवाल करेंगे। अगर हम सारे खत्म हो गए ना, हम तो खत्म हो जाएंगे, क़यामत में तो हम तुम इकट्ठे मिलेंगे, फिर पूछेंगे जरूर कि हम खत्म हो रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे। अगर ये जीनोसाइड हो गया, ये कत्ले आम हो गए, नस्ल कुशी हो गई, बर्मा में क्या था, क्या है बर्मा में? बर्मा में मुसलमानों का कत्ले आम नहीं है, नस्ल कुशी है, इनकी नस्ल बता दो। आज 2 सदियां होने लगी, कश्मीरियों का मौकफ नहीं बदला। ये 2 साल की कहानी नहीं है, ये 90 से लेके 2019 तक 29 साल की तहरीक नहीं है। हमारे साथ लोग ये 25 साल की तहरीक है, नहीं, ये 1931 से लेके 1846 से लेके 2019 तक का कज़िया है।
इसमें लाखों, और कश्मीर में मदारे शोहदा अलग हैं, शोहदा के कब्रिस्तान अलग हैं, आम अवाम अलग दफन होती है। ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां शहीदों की कब्रें ज्यादा हैं और आम मरने वाले थोड़े हैं। कश्मीर की कोई वादी, कश्मीर की कोई घाटी, कश्मीर का कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें शहीद की कब्र ना हो। और वो कश्मीरी लोग एक शहीद का जनाजा उठाते हैं और जनाजे में आजादी के नारे लगाते हैं और गोलियां बरसती हैं। एक दफन करने जाते हैं, एक लाश लेके जा रहे होते हैं, 4 वापस ला रहे होते हैं। अब इनको दफन करना है। जो जुमे की नमाज के बाद ऐलान करते हैं जाना मत, शहीद का जनाजा होगा। जो कहते हैं पाकिस्तानियों तुम्हारी 5 नमाजें हैं रोज की, हमारी 6 नमाजें हैं, हमारा कोई दिन शहीद के जनाजे के बगैर नहीं। जो ईद की नमाज के बाद कहते हैं घर में जाके कुर्बानी बाद में करेंगे, ईद की सवैयां बाद में खाएंगे, शहीद की मैयत आई है पहले जनाजा पढ़ेंगे फिर ईद पे जाएंगे। फिर वो शहीदों की माएं रोती देखी कि बच्चों को हार पहनाती देखी आपने? और बताओ गुजरांवाले के भाइयों, मुजाहिदों, साथियों, आप घबरा गए बातों से। और बेटे की मैयत आए और मां उसको हार पहनाए और उसको दूध पिलाए। मैं देख रहा था उसको मेहंदी लगा रही है, शहीद को मेहंदी लगा रही है सर पे दाढ़ी पे। लोगों ने कहा ये क्या करती हो, ये तो शहीद हो चुका। कहती दूल्हा है ना, जन्नत में जाएगा, मेरे रब ने इसकी हूरों से शादी करनी, दूल्हा बना के रवाना करती हूँ। हार पहनाए। और कौन माँ होगी दुनिया में जो मिठाई का थाल लेके खड़ी हो और हर आने वाले को कहो मेरे बेटे कहे कि मेरे बेटे की शादी है मिठाई खाओ, मेरे बेटे की शादी है मिठाई खाओ। ये कहानियां नहीं है, हमने आंखों से देखी चीजें। शहीद का जनाजा हो, मुजाहिद आए, मुजाहिद से बंदूक खींच के कहे मुझे दो, और गोलियां चला के कहे कि मैं किसी को नहीं कहती मर्द को, मैं इसकी मां हूं, मैंने इसकी बंदूक उठाई है। फायर करके हिंदुस्तान को बताए हम शोहदा की माएं हैं, अपने बच्चों के रास्ते से पीछे नहीं हटेंगी। वो गोलियां चला रही है, साथ वाली मां कहती थोड़ी चलाना, इन मुजाहिदों के पास थोड़ी होती। एक चला के जज्बे का एहसास दे रही है कि हाँ हम लोग जिंदा हैं। ये पाकिस्तान के लोगों की कहानियां नहीं, ये मकबूजा कश्मीर के लोग। दूसरी कहती है थोड़ी चलाना, इन मुजाहिदों के पास तो पहले थोड़ियां होती। फूल फेंक रहे जनाबों पे, हजारों तस्वीरें आज इंटरनेट पे कश्मीर की माओ की पड़ी। ये कोई खुफिया बातें नहीं बता रहा, ये मंजर भरे पड़े। 5 साल का बच्चा है शहीद का, बाप के जनारे पे खड़ा होकर कह रहा है हम क्या चाहते, आजादी, लेके रहेंगे आजादी, तुम क्यों ना दोगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 5 साल का बच्चा ये कहे, आप उस कौम को खत्म करेंगे? 80 साल की मां बैनर लेके आए, वी वॉन्ट फ्रीडम। बुरहान वानी, 2 ही भाई थे, खालिद मुजफ्फर, बुरहान मुजफ्फर वानी। मुजफ्फर वानी बाप है, डरते नहीं है। मीडिया दुनिया उस बाबे के सामने जाए, इंटरनेट खोल के देखें, उसको बीबी जाके कहती जब तुम्हारे बेटे को गोली लगी हम तो बड़ा हुआ होगा। कहता हाँ, पहला बेटा पहले शहीद हो चुका है और 2 साल के बाद दूसरा बेटा शहीद हो गया, 2 ही शहीद हो गए। बाबा रो पड़ा के हौसले में, जाके घर देखना। ये खाम खा ये मेरे नौजवान बैठे, कभी कुछ चलाते हैं इंटरनेट पे, कभी कुछ, और चलाना है तो कश्मीर चलाओ। आज तो वजीर आज़म पाकिस्तान ने क्या कहा, पाकिस्तान के जिस शहरी के पास मोबाइल फोन है आज के बाद वो कश्मीर के लिए इस्तेमाल करे। दुनिया को कश्मीर की खबरें दे दो, दुनिया को कश्मीर के हालात बता दो, कश्मीर खामोश नहीं रहेगा। ये खून है, ये बोलेगा इंशाअल्लाह। ये एक तहरीक है अल्लाह के नाम पे, ये अपने अंजाम तक पहुंचेगी। आजादी उनका मुकद्दर है, उनसे कोई छीन नहीं सकता। आजादी का फैसला आसमान से आना है, अमेरिका से नहीं आना इंशाअल्लाह। हमें किसी काफिर से कोई उम्मीद नहीं है, ना फ्रांस से, ना बर्तानिया से, ना अमेरिका से। हमारी एक उम्मीद है, वो हमारे रब के ऊपर है।
हमने एक रब से आजादी मांगी है। कश्मीरी नारे लगाते हैं, किससे आजादी मांगते हैं? ए मौला दे दे आजादी, ए मौला दे दे आजादी। वो अपने रब से आजादी मांगते हैं। वो आजादी का मतलब मुल्क नहीं कहते, वो आजादी का मतलब क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो पाकिस्तान से दरियाओं के रिश्ते नहीं जोड़ते, वो पाकिस्तान से जुग्राफिया के रिश्ते नहीं जोड़ते। वो तो ऐसी कौम है, हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमान हिंदी जुबान लिखते हैं, अंग्रेजी जुबान लिखते हैं। पूरे हिंदुस्तान में उर्दू अखबार नहीं छपता, उर्दू जुबान नहीं आती लोगों की, हिंदी में लिखते हैं। और पूरे कश्मीर के सारे अखबार किसमें छपते हैं? उर्दू में। कश्मीर में कोई हिंदी नहीं बोलता, कश्मीर के सारे लोग उर्दू बोलते हैं। आधे घंटे का फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के टाइम का। कश्मीर की हर घड़ी इस्लामाबाद के साथ है, दिल्ली के साथ नहीं है। वो ईद रमजान का ऐलान दिल्ली के साथ नहीं करते, इस्लामाबाद के साथ करते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान। ये वही कहते हैं, हमारे लिए वो कश्मीरी है कि पाकिस्तानी है? जब तक हमारी हुकूमतें अवाम इस एजेंडे पे नहीं आएंगे वो पाकिस्तानी है, कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ। आज तक वो मसला कश्मीर है का मसला पाकिस्तान है। आज तक उनको पाकिस्तान करार नहीं देते। वो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, वो पाकिस्तान के परचूनों में दफन होते हैं। अभी तक ये बैठे और मैं खड़ा और इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम उनको कश्मीरी कहते हैं, उनको पाकिस्तानी कहें। जब हम ये तकरीर में कहते हैं हम सिंधी, बलोची, पठान, सराइकी और ये सारा कुछ बाद में है, पहले क्या है? पाकिस्तानी। उनसे भी कहें आप कश्मीरी बाद में और पाकिस्तानी। ये श्रीनगर का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। और वो कहते हैं पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो मकान और ज़मान के रिश्ते नहीं ढूंढते, वो तौहीद के रिश्ते आपसे बांधते हैं। अगर वो अल्लाह का नाम लेके तुमसे मदद का सवाल कर दे तो तुम पे मदद करना फर्ज है। ये अल्लाह का कुरान है। अल्लाह के नाम पे मदद मांग रहे हैं, खामोश मत रहे, खामोश मत रहे। तो वो कहना तुम्हारे बेटे को गोली लगी, तकलीफ नहीं हुई? कहता तकलीफ तो होती है, मगर बेटा बाद में और अल्लाह पहले है। बेटा बाद में और कुरान पहले है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हैं और बेटा बाद में। उसने कहा कि तुम इतनी बड़ी फौज को शिकस्त दे सकते हो, एक चंद कश्मीरी, इतनी बड़ी हिंदुस्तान? कहता हाँ फौज तो बहुत बड़ी है, मगर हमारा तवक्कल किसके ऊपर है? अल्लाह पे। सुनी बाबे की बातें आपने? कहता हमारा तवक्कल अल्लाह के ऊपर है, हमने अल्लाह से लेना है। उसने कहा तुम क्या चाहते हो? कहा जो सारे कश्मीरी चाहते हैं, हम आजादी चाहते हैं। ये छुप के नहीं कह रहे, सरेआम कह रहे। ये पहला मौका है कि कश्मीर के नौजवान चेहरे पे रुमाल बांध के नहीं आ रहे, खुले चेहरों के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं। और आम जंगलों पहाड़ों के लोग नहीं है। पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है, कुछ नहीं करा रहा। अब्दुल मन्नान वानी कौन है? पीएचडी स्कॉलर। रफी भट्ट कौन है? पीएचडी अलीगढ़ के पढ़े। ये लोग आज बंदूक उठा के बता रहे हिंदुस्तान को हम तुम्हारे साथ, एक कश्मीरी लोग हैं। बुरहान मुजफ्फर श्रीनगर का रहने वाला था। आदिल उमर जिसने पुलवामा किया वो पाकिस्तान का नहीं था, वो तुम्हारा था, कश्मीर में रहने वाला था। हिंदुस्तान आज ये कौम खड़ी हो गई है, इसके जवान खड़े हो गए, इसकी बेटियां खड़ी हो गई हैं। आपा जी आसिया ड्राबी कहती हमारी रूह जुड़ी है पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, हमारी रूह जुड़ी है पाकिस्तान के साथ। लाशें बिखरी पड़ी हैं, तराने चल रहे हैं। इस परचम के साए तले अब आना होगा, अपने पाकिस्तान को बचाना होगा। आपा जी बता रही पाकिस्तान का नाम लेके जो हमें खुशी होती, इसका एहसास आजाद पाकिस्तान के लोगों को। मैं आवाज देती हूँ, कहाँ है मोहम्मद इब्न कासिम? पुकार रही है जेल से, 2 साल हो गए जेल में। खामद 27 साल में, 90 में शादी हुई, 92 में खामद गिरफ्तार हुआ है। 27 साल चोरी नहीं की,
قتل نہیں کیے, کچھ نہیں. یہ کہا ہے کشمیر بنے گا پاکستان. 92 سے لے کے 2019 جیل ہے. اور بیوی بیماری میں, دمے کی مریضہ, بلڈ پریشر کی مریضہ, کتنی تکلیفیں, 2 سال سے جیل. 90 سال کے ہو گئے علی گیلانی, آدھی زندگی جیلوں میں گزارتے. یاسین ملک کے بارے میں کیا حالات کسی کو پتہ ہی نہیں. جب وہ کشمیر کے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تو ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ جب وہ اس کرفیو کے اندر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے, وہ گھبرائے نہیں, مایوس نہ ہو. ہم آزاد ملک کی آزاد فضاؤں میں سویرے سری پائے کھا کے, حلوے کھا کے, کلچے کھا کے گجرا والے کے لوگ ہیں. پتہ نہیں کشمیر کا کی بننا ہے. کشمیر کا ایک ہی حل ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزادی دے گا. ہم نے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے. ہم نے ان کی آواز میں آواز ملانی ہے. ہم نے ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملانا ہے. ہم نے ان کے قدم کے ساتھ قدم ملانا ہے. ہم نے ان کا مقدمہ لڑنا ہے انشاءاللہ. اور جو اللہ نے ہم پہ واجب کیا ان کی مدد, جو جس طرح اخلاقی لحاظ سے, ثقافتی لحاظ سے, اور جو بھی ہو سکا سب آپ سمجھتے ہیں انشاءاللہ ہم وہ کریں گے. اور ہماری باتیں نہیں ہیں, انشاءاللہ ہم کام کے لوگ ہیں. انشاءاللہ کل بھی دنیا جانتی تھی, آج بھی دنیا جانتی. انشاءاللہ کشمیر کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. میرے نبی نے کہا مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پہ ظلم کرتا نہ کبھی اس کو تنہا چھوڑتا ہے. ہم اپنے کلمے کے بھائیوں کو بہنوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. انشاءاللہ فکر نہ کریں. آج 1 کروڑ مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز اگر پاکستان ہے تو 22 کروڑ پاکستانی 1 کروڑ بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں تم گھبرانا نہ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ کے توکل پہ, اللہ کے بھروسے پہ ہم تمہارا مقدمہ بھی لڑیں گے. ہم ہر قربانی دیں گے تمہاری عزتوں کے لیے, تمہاری عفتوں کے لیے, تمہاری آزادیوں کے لیے, تمہاری حرمتوں کے لیے, تمہارے بہتے لہو کے لیے, تمہیں زنجیروں سے چھڑانے کے لیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین.